مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا میسیج ہے 68 نمبر زبور میں سے، اور ٹائٹل ہے بوجھ۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کتنا مبارک خدا ہے جو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمیں حفاظت سے کام پہ لے کے جاتا ہے، ہماری فیملیوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں ہر وبا بیماری سے بچاتا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت دیتا ہے۔ کتنا مبارک ہے یہ خدا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کو سب کی فکر ہے، ہر چیز کو جس کو اس نے خلق کیا ہے، اس کو اپنی خلق کی ہوئی ہر چیز کی فکر ہے۔ یہ پرندے جو صبح اٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ خدا ان کو بھی کھانے کو دیتا ہے، ان کو بھی رزق روٹی دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شیر کو جب وہ دھاڑتا ہے تو اس کا منہ اوپر ہوتا ہے، وہ بھی خدا سے التجا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن روحانی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو اس نے خلق کی ہے اس کا وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھیڑیے کو دیکھیں یا کسی کتے کو دیکھیں تو وہ بھی اوپر کو منہ کر کے بھونک رہے ہوتے ہیں، اور اگر کتا کسی کو پڑھتا ہے تو وہ کسی اور پوزیشن میں پڑھتا ہے۔ مرغے کو دیکھیں، وہ ایسے ہوتا ہے، اور جب وہ صبح اذان دیتا ہے تو اوپر کو منہ کر کے دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ خدا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 46 باب اس کی 3 سے 5 آیت تک۔ اے یعقوب کے گھرانے، اے اسرائیل کے گھر، سب باقی ماندہ لوگوں جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود لیا۔ اے یعقوب کے گھرانے، اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ ہیلیلویا! کتنا مبارک وہ خدا ہے کہ جو رحم سے، ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں، ایک دن کی بھی پریگننسی ہوتی ہے تبھی سے وہ ہمیں گود میں لے لیتا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ خدا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا۔ اب اس پیٹ میں آکسیجن کون دے رہا ہے؟ خوراک کون دے رہا ہے؟ اس کی گروتھنگ کون کر رہا ہے؟ کون جانتا ہے رحم میں ہڈی کیسے بڑھتی ہے، کیسے آنکھ بنتی، کیسے کان بنتے ہیں، کیسے ہاتھ بنتے ہیں، کیسے ناخن بنتے ہیں، کیسے جسم کے پورے اعضاء بنتے ہیں؟ وہ خداوند کی ذات بڑھاتی ہے۔ اور خداوند کیا کہتے ہیں کہ میں نے رحم سے ہی تمہیں گود میں لے لیا۔
तुम्हारे बुढ़ापे तक ही और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। हालेलुया। और जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते, तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हें उठाए रखूंगा। कितना मुबारक है खुदा, ये है खुदा। कितना मुबारक है ये खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। और मैंने ही तुझे खलक किया और मैं ही तुझे उठाए रहूँगा। मैं ही ने जना और मैं ही रिहाई बख्शूंगा। हालेलुया। खुदावन कितना मुबारक है कि वो माँ के रहम से हमारा बोझ उठाता है। अगर हम देखा जाए, हमारे घर कोई मेहमान आए तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चौथे दिन हम उसका बोझ नहीं उठा सकते। अगर मैं उठा रहा हूँ, हो सकता है घर के दूसरे अफराद तंग आ जाए। लेकिन कितना मुबारक है वो खुदा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। अगर हम देखें इमसाल 8 बाब उसकी 34 आयत तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है। हालेलुया। अब देखते हैं कि कौन मुबारक है जो उसकी सुनता है, जो उसके कलाम पे अमल करता है और जो उस पे ईमान रखता है। अगर हम देखें यूहन्ना 5वां बाब आयत 1 से लेकर 9 तक, तो बैतन हिस्दा एक हौज था जहां 38 इयर्स से एक आदमी खड़ा, उसके फाटकों पे खड़ा, उसकी शफा का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। 38 साल से वो उस फाटक पे खड़ा था और खुदावंद का इंतजार कर रहा था, उसकी शिफा का इंतजार कर रहा था। फिर खुदावंद आए और खुदावंद ने कहा, उठा अपनी चारपाई और जा। और उसने अपनी चारपाई उठाई और उधर से चल दिया। कितना मुबारक है वो खुदा जो हमारा बोझ उठाता है। अगर हम लोगों को किसी का बोझ उठाना पड़े तो हम तंग आ जाते हैं। सके बहन भाइयों का कोई ज़्यादा बोझ उठाए वो तंग आ जाता है। अगर कोई बहन भाई अपाहिज है तो उसके बोझ उठाते हुए लोग तंग आ जाते हैं। लेकिन कितना मुबारक है वो खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। बैतन हिस्दा में कितना मुबारक था वो आदमी जो खुदावंद की शफा के लिए 38 ईयर्स से वहाँ इंतज़ार कर रहा था। बैत का मतलब है
घर, हिजदा का मतलब है फजल, वो फजल वाला घर था। अब यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल थी और वो 38 ईयर्स से वहाँ, यानी यीशु मसीह की पैदाइश से पहले वहाँ यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था। यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल थी और ये आदमी 38 ईयर्स से वहाँ शिफा का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा मुबारक खुदा आएगा और मुझे शिफा देगा। और उसके ईमान के मुताबिक खुदावंद ने उसको आके शिफा दी। हालेलुया! कितना मुबारक है वो खुदा जो माँ के रहम से हमारा बोझ उठा लेता है। और हम क्या करते हैं? कभी हमने सोचा है कि हम क्या करते हैं? हम कभी उसको छोड़ देते हैं, जब याद आया तो उसकी दुआ कर लेते हैं। हमें इतना अच्छा खाने पीने को देता है, जब दिल करे तो उसकी शुक्रगुजारी कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग उसको भूले होते हैं। लेकिन कितना मुबारक है वो खुदा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। अगर कोई आदमी मर जाए तो उसको, उसके जनाजे को कंधा देने के लिए तकरीबन 4 आदमी चाहिए और उसको कंधा दे के दफना के 2 घंटों में वापस आ जाते हैं। मरे आदमी का तो इंसान बोझ उठा लेता है, लेकिन जिंदा आदमी का कोई बोझ नहीं उठाता। और कितना मुबारक है वो खुदा कि वो माँ के रहम से हमारा बोझ उठाता है और बाल सफ़ेद होने तक वो ही खुदा है। हमारे कई क्लास फेलो हैं, कई बचपन के यार दोस्त हैं, बचपन में बहुत उनके साथ प्यार है, लेकिन बाद में आके वो भी फैमिली वाले हो गए, हम एक दूसरे को के साथ वो प्यार नहीं रहा। लेकिन कितना मुबारक है ये खुदा जो माँ के रहम से लेके बाल सफ़ेद होने तक हमें संभाली रखता है। और वो ही खुदा है, वो चेंज नहीं होता। ये है खुदा। और हम उसके साथ सिंसियर चलते हैं? वो हमें कितना प्यार करता है। कलाम कहता है वो खुदा का बरा है जो हमारा बोझ उठाए ले जा रहा है। वो हमारे गुनाहों का बोझ उठाता है, वो हमारे लिए कफारा देता है, वो हमारे लिए हर रोज हमारा बोझ उठाता है। दुनिया के इल्फाजों में और दुनिया की किताबों में और आलमों के ज़हनों में कोई ऐसा इल्फाज नहीं जो मेरे खुदा की शान को बयान कर सके। कितना मुबारक है वो खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। खुदा आप सबको बरकत दे।